नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, ये यूजीसी नेट 2007 का पेपर 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बाइनरी काउंटर्स आर करेक्ट? Clock inputs of all the flip-flops of a synchronous counter are applied from the same source, whereas those in an asynchronous are from different sources. Is this right statement? Yes, right. The asynchronous counter has ripple effects, whereas a synchronous counter does not. Yes. Only JK flip-flops can be used in synchronous counters, whereas asynchronous counters can be designed with any kind of flip-flops. This is not right. Latches can be used for designing asynchronous counters. True. C. सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है? सिंक्रोनस काउंटर जो होता है आपका, इट कैन बी डिजाइन विद एनी फ्लिप फ्लॉप। कैसी भी फ्लिप फ्लॉप से हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। इट डज नॉट हैव अ रिपल इफेक्ट। डज नॉट हैव रिपल इफेक्ट। सम क्लॉक पल्स इज अप्लाइड टू ऑल फ्लिप फ्लॉप। सेम क्लॉक पल्स, इसमें क्या होती है? सेम क्लॉक पल्स इज अप्लाइड टू ऑल flip-flops. So synchronous counters can be designed with any flip-flop. It does not have any ripple effect. Ripple means delay effect नहीं है. And third, same clock pulse is applied to all the flip-flops. Asynchronous में भी क्या होता है? Asynchronous में भी it can be designed with any flip-flop and it has a ripple effect. इसमें ripple effect भी होता है and different clock pulses are provided to the flip-flops. इसमें क्या होता है? Different clock pulses are applied to the flip-flops. डिले प्रॉब्लम क्या होता है कि इन असिंक्रोनस काउंटर्स द आउटपुट ऑफ द प्रीवियस स्टेज सर्व्स एज द क्लॉक ऑफ द नेक्स्ट स्टेज। जैसे ये आउटपुट है तो इसका जो आउटपुट है इट सर्व्स एज अ क्लॉक टू द नेक्स्ट स्टेज। ये किस में होता है? असिंक्रोनस में होता है। ठीक है। एज द नंबर ऑफ स्टेजेस इंक्रीजेस द प्रोपेगेशन डिले ऑफ ईच फ्लिप फ्लॉप स्टेज एड्स अप। जैसे ही आपकी नंबर ऑफ स्टेजेस इंक्रीज करती हैं, एज द नंबर ऑफ स्टेजेस इंक्रीजेस, जो आपका प्रोपेगेशन डिले है ऑफ ईच फ्लिप फ्लॉप इट एड्स अप। ये ऐड होता रहता है, रिजल्टिंग इन द प्रोपेगेशन डिले टू बिकम सिग्निफिकेंट। जिससे कि प्रोपेगेशन डिले, मान लीजिए देयर आर 4 फ्लिप फ्लॉप्स। इफ देयर आर 4 फ्लिप फ्लॉप्स, इनका प्रोपेगेशन डिले 2, 3, 4, 5 है, तो प्रोपेगेशन डिले हर एक फ्लिप फ्लॉप का ऐड होता रहेगा। 2 + 3 5 + 4 9, 9 + 5 14। ठीक है, तो ये है आपका। तो इसीलिए आपका ये 3 स्टेटमेंट्स A, B एंड D सही है। तो इसीलिए आपका ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A multiplexer selects one of the several inputs and transmits to a single output. Routes the data from a single input to many outputs. Convert parallel data into serial data and it is a combinational circuit. देखिए, मल्टीप्लेक्सर जो होता है ये क्या होता है? It is many to one data selector होता है। Multiplexer selects one of many data available at its input depending on the bits on the select line. जैसे यहाँ पे ये select lines हैं आपकी, मान लीजिए S1 and S0. So depending upon the bits on the select line, जितने यहाँ पे bits होंगे, depending on the bits on the select line, जो multiplexer होता है it selects one of many data available. जैसे for 2 to the power n inputs there are n select lines. ठीक है, तो that determine which input is to be connected to the output. तो multiplexer it is used for parallel to serial data conversion. तो यहाँ पे जो आपका स्टेटमेंट है आपका A सही है। It selects one of the several inputs and transmits to a single output. Second क्या है? Routes the data from a single input to many outputs. No, हमेशा इसमें single output आता है। Converts parallel data into serial data. तो Q output of modulus 8 counter is connected to the data serial select inputs of 8 multiplexer. देखिए इसमें क्या होता है कि अब ये तो मैं नहीं बोलूँगी यहाँ पे, इसको चलो बाद में डिस्कस करेंगे। ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ये भी ट्रू है। तो आपका जो है A, C एंड D है। Which of the following statements on DRAM are correct? पेज मोड रीड ऑपरेशन इज फास्टर देन RAS रीड। यस, ये ट्रू है। देखिए पहले तो DRAM होता है एक डायनेमिक रैम एक्सेस मेमोरी होती है। ये डायनेमिक होता है बिकॉज इट मस्ट बी रिफ्रेश्ड पीरियोडिकली। इसे पीरियोडिकली रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, ये जो होता है ये वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल मीन्स कि इट लूजेस डेटा। इट लूजेस डेटा whenever the power is removed.
दूसरा 1 DRAM सेल, एक ट्रांजिस्टर की जो DRAM सेल होती है 1T DRAM सेल, इसमें एक ही सिंगल ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। इट हैज़ अ कंट्रोल इनपुट वर्ड लाइन एंड अ डेटा इनपुट आउटपुट बाइट लाइन। मतलब आप ये डायग्राम देख लीजिए कि जैसे ये क्या है, वर्ड लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे आपने आउटपुट में कैपेसिटर लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये बिट लाइन है, तो इट हैज़ कंट्रोल इनपुट वर्ड लाइन एंड अ डेटा आउटपुट बिट लाइन, ठीक है। तो रो एड्रेस स्ट्रोब, ये जो RS होता है इसका मतलब होता है रो एड्रेस स्ट्रोब। इट असर्टेड आफ्टर द रो इज प्लेस्ड ऑन द एड्रेस पिन्स। कॉलम CAS क्या होता है, CAS होता है कॉलम एड्रेस स्ट्रोब, असर्टेड आफ्टर द कॉलम इज प्लेस्ड ऑन द एड्रेस पिन्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी हम DRAM की बात कर रहे हैं, तो इसमें जैसे इसने बोला है पेज मोड रीड ऑपरेशन इज फास्टर देन RAS रीड। पेज मोड रीड में क्या होता है, फर्स्ट रीड साइकिल इज सिमिलर टू RAS रीड साइकिल, ठीक है। तो दस द रो एड्रेस जो होता है, इसमें जो आपका रो एड्रेस होता है, इट इज सेंट टू द मेमोरी एंड RAS को फिर एजर्ट किया जाता है, RAS इज एजर्टेड, ठीक है। फिर कॉलम एड्रेस इज सेंट टू द मेमोरी, देन CAS इज एजर्टेड, फिर राइट इज निगेटेड। तो वन लोकेशन इस तरह से रीड होती है। तो यहाँ पे जैसे इसमें क्या है, द प्रोसेस जब अगेन पेज मोड इज रीड, RAS रिमेन्स असर्टेड एंड CAS इज निगेटेड। आफ्टर निगेटेड मतलब उसको रिजेक्ट किया जाता है। आफ्टर अ टाइम पीरियड इक्वल टू TCP। देखो इसमें क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पहला क्या है आपका रो एड्रेस जो है, रो एड्रेस इट इज सेंट टू द मेमोरी एंड RAS इज असर्टेड। कॉलम एड्रेस जो होता है इट इज सेंट टू द मेमोरी एंड देन CAS इज एजर्टेड एंड राइट इज निगेटेड, राइट को हटाया जाता है, राइट इज निगेटेड। दिस कॉजेज वन लोकेशन टू बी रीड, एक लोकेशन फिर रीड होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगेन पेज मोड इज रीड, अगेन जो आपका पेज मोड है इट इज रीड अगेन एंड RAS असर्टेड होता है, CS जो है निगेटेड होता है। तो आफ्टर टाइम पीरियड इक्वल टू TCP, CS फिर अगेन असर्टेड होता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट कॉलम एड्रेस इज प्लेस्ड ऑन द एड्रेस बस, और तब नेक्स्ट कॉलम एड्रेस को हम एड्रेस बस में रखते हैं। तो दिस प्रोसेस रिपीटेड अंटिल ऑल डेटा हैज रीड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट B कह रहा है कि RAS इनपुट रिमेन्स एक्टिव ड्यूरिंग द कॉलम एड्रेस स्ट्रोब। See, read cycle begins when the microprocessor placing a 10-bit row address at the A0 to A9 inputs। जैसे आपका A0 से A9 के inputs हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10-bit row address push रखा जाता है। The address is strobed into row buffers। फिर address को जो होता है it is strobed into row buffers activating RAS input, जिससे कि एक्टिवेटिंग RAS इनपुट। 10-bit रो एड्रेस जो होता है इट इज फर्स्ट प्लेस्ड एट द A0 to A9 इनपुट्स। जब रीड साइकिल होती है, कब होता है, रीड साइकिल में 10-bit रो एड्रेस A0 to A9 इनपुट्स पे लगाते हैं। एड्रेस इज स्ट्रोब्ड इनटू रो बफर्स एक्टिवेटिंग RAS इनपुट। सिमिलरली जो 10-bit कॉलम एड्रेस होता है, अगर सिमिलरली आपका 10-bit कॉलम एड्रेस है तो ये भी CS इनपुट को एक्टिवेट करता है, ठीक है। इट इज स्ट्रोब्ड इनटू कॉलम एड्रेस बफर्स, ये भी कॉलम एड्रेस बफर्स में जाता है। तो नोट दैट RAS रिमेन्स एक्टिव ड्यूरिंग द कॉलम एड्रेस स्ट्रोब। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट जो है आपका, ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। नाउ RAS इनपुट रिमेन्स एक्टिव ड्यूरिंग द कॉलम एड्रेस स्ट्रोब। अब स्टेटमेंट C कह रहा है DRAM सेल ऑक्युपाइज मोर स्पेस देन SRAM सेल। एज बेसिक DRAM सेल इज 1T DRAM एंड SRAM में 6 ट्रांजिस्टर सेल्स होती हैं, इसमें केवल 1 ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। इसीलिए SRAM ऑक्युपाइज मोर स्पेस। तो ये गलत है।
DRAM में केवल एक ट्रांजिस्टर होता है और SRAM में 6 ट्रांजिस्टर होता है. DRAM uses 1 ट्रांजिस्टर सेल्स which allows the highest memory density. इसीलिए इसकी हाईएस्ट मेमोरी डेंसिटी होती है, राइट? अब इसीलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. स्टैटिक पावर इज डिसिपेटेड फॉर स्टोरिंग चार्ज इन अ कैपेसिटेंस. देखिए स्टैटिक पावर इज डिसिपेटेड फॉर स्टोरिंग, ये तो सही है. सिंस द स्टोरेज टेक्स डायनेमिकली ऑन द स्टोरेज कैपेसिटर देयर इज नो स्टैटिक पावर. कोई भी स्टैटिक पावर नहीं होती है क्योंकि वो डिसिपेट हो जाती है. देयर इज नो स्टैटिक पावर डिसिपेटेड फॉर स्टोरिंग. स्टैटिक पावर इज डिसिपेटेड फॉर स्टोरिंग सिंस द स्टोरेज टेक्स डायनेमिकली मतलब इसको पीरियोडिकली रिफ्रेश किया जाता है, हर बार इसको रिफ्रेश किया जाता है, तो स्टोरेज डायनेमिकली होता है ऑन द स्टोरेज कैपेसिटर. इसलिए कोई भी स्टैटिक पावर डिसिपेट ही नहीं होती. नो स्टैटिक पावर इज डिसिपेटेड फॉर स्टोरिंग. ठीक है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है. तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ए एंड बी होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following are control handshake signals in mode 1 of 8255? 8255 PPI होता है, right? Programmable Peripheral Interface होता है. In order to use port A or port B for handshake input or output operations, we initialize the port in mode 1. देखिए 2 ports हैं आपके पास, port A and port B. It can be used as 8-bit I/O ports. Each port uses 3 lines of port C as a handshake signal. Each port uses 3 lines of port C as handshake signal. And the remaining 2 signals can be used as I/O ports. जो बाकी के 2 signals हैं, each port C के 3 lines यूज करता है as a handshake signal, और जो remaining 2 होते हैं they can be used for I/O ports. And remaining 2 signals can be used as I/O ports. ठीक है, अब इसमें देखिए पोर्ट A, in order to use the port A और पोर्ट B, अगर हमें for handshake input और output operations we initialize the port in mode 1. हमें mode 1 में कौन से पोर्ट्स यूज करने हैं? पोर्ट A और पोर्ट B फॉर हैंडशेक इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस. ठीक है, तो हम इसीलिए पोर्ट को मोड 1 में इनिशियलाइज करते हैं. ठीक है, इनपुट हैंडशेकिंग सिग्नल्स कौन से होते हैं? जैसे इसने बोला ना, जो इनपुट हैंडशेकिंग सिग्नल्स होते हैं इसमें देखिए ABC, एक तो OBF है, एक देखिए ये OBF है. OBF तो मुझे लगता है, देखिए OBF है आउटपुट बफर फिल. इट सेट्स टू, अब ये बाद में हम पढ़ेंगे. IBF इनपुट बफर फिल है. फिर इसमें STB है. STB स्ट्रोब्ड इनपुट होता है, ये STP है. इसका जो राइट आंसर होगा इट लोड्स, और क्या है इसमें? BSR है. BSR इसमें जो नहीं, BSR नहीं है, इसमें सिर्फ 3 होंगे, A, B एंड C, ये नहीं है. तो इसीलिए जो मोड 1 में पोर्ट्स इनिशियलाइज होते हैं वो होता है सेकंड. ठीक है, मोड 1 में कब होते हैं? ठीक है, पोर्ट A एंड पोर्ट B. ठीक है, ये इनपुट हैंडशेकिंग सिग्नल्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसका A, B एंड C है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये C का क्वेश्चन है. अब तो वैसे C आती नहीं है. जैसे इसने बोला है which of the following statements are correct about the program? Hash include studio.h int main, फिर इसमें union A दिया है, int x char C2, फिर union AK1 union AK2, फिर read the program. K2 cannot be initialized as shown. ये correct है because representation of K2 in given program is this much. ये है ना K2 का representation. K2 is declared as, K2 क्या है? इसको डिक्लेयर किया है char type. It is char type डिक्लेरेशन है इसका, but it is taking int values. लेकिन ये क्या कर रहा है? int values, ये अंदर ये char type है लेकिन ये int values ले रहा है. It is taking int values, so it cannot be initialized as shown. ऐसे नहीं initialize कर सकते हम इसको, इसीलिए ये गलत, ये आपका सही है. दूसरा है K1 can be initialized as shown. This statement is in. K1 cannot be initialized as shown. ये गलत है. It cannot be initialized as shown. क्यों? Because values are separated in space. यहाँ पे अगर आप देखो values are
सेपरेटेड इन स्पेस, कॉमा तो लगा ही नहीं है, विच इज नॉट द प्रॉपर सिंटैक्स टू इनिशियलाइज द इंटीजर वेरिएबल इन यूनियन। ठीक है, स्टेटमेंट सी क्या है, टू इनिशियलाइज चैर सी ऑफ K2 दिस ऑपरेटर शुड बी यूज्ड। देखिए, टू इनिशियलाइज चैर सी ऑफ K2, इट इज करेक्ट, ये करेक्ट है, वेरिएबल शुड बी इनिशियलाइज्ड विद, ये ऐसे है एक्चुअली दिख नहीं रहा है, एग्जाम्पल है जैसे आपका यूनियन डेटा इंट आई, तो देन वैल्यूज मस्ट बी असाइंड इन फॉर्म ऑफ डेटा आई इक्वल टू 2। ठीक है, statement 2a results in syntax error. As we have already checked, there is syntax error during the initialization of values of variable. Initialization of values of variable. So when we run the program, it will result in a syntax error. तो इसका जो right answer होगा A, C and D होगा। जब हम syntax error कब होता है? During the initialization of values of variable. ठीक है, when we run the program, देखो ऑलरेडी इसमें एरर तो दिख ही रही है ना कि K1 में कैर टाइप है लेकिन K2 में चैर टाइप है लेकिन इंटीजर वैल्यूज ले रहा है। ठीक है, और दूसरा K1 जो है वैल्यूज आर सेपरेटेड इन स्पेस, तो ऑलरेडी इसमें क्या है, एक सिंटेक्स एरर ऑलरेडी है, देयर इज अ सिंटेक्स एरर। ठीक है, ड्यूरिंग द इनिशियलाइजेशन, तो इसीलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा A, C एंड D। इसमें तो ये है नहीं, इसका राइट आंसर है A, C, D। पता नहीं वो शायद कहीं मिसप्लेस हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला है, कंसिडर द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ एरे इन सी, इंट a 2 3 इज इक्वल टू, ये सब कुछ दिया है। देखिए, एरे रिप्रेजेंटेशन इज समवॉट लाइक दिस, कैसे होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 10 20 30, फिर 40 50 60। ठीक है, फिर यहाँ पे 100 200 फिर 300 आएगा, ये नेक्स्ट लाइन में होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 400 500 फिर 600 होगा। तो यहाँ पे जो A पॉइंट है आपका, which of the following expressions would give value 1 for the array defined above? When index value is 0, it means we are accessing the first element. अगर ये वैल्यू आपको दिया है when the index value is 0, it means हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। Here it is 1, so it will give the element 1, ये क्या देगा, एलिमेंट 1 देगा। ठीक है, फिर इसमें दिया है 3 asterisk a, in case of one dimensional array single asterisk will lead to element a 0 position। अगर सिंगल asterisk है तो ये a 0 position देगा। 2D में क्या होगा, अगर हम डबल asterisk यूज करेंगे it will give element a of array 0 0, and similar way अगर 3 asterisks होंगे तो it will give value 1 which is again a of 0 0 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है, तो इट विल लीड टू, देखो इसमें ये जो ये आपका बी ऑप्शन था। ठीक है, 3 एस्ट्रिक्स दिए हैं तो इसमें ये एलिमेंट आएगा। इसका आंसर जो आ रहा है, एक आपका ए आंसर सही है, एक आपका जो है बी आंसर सही है, क्योंकि इट विल गिव द एलिमेंट ए ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 0। ठीक है, अब ये वाला इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? it will not give any value of 1, it will not give any value of 1 whenever there is 3 times of asterisk a, already ये giving value 0 दे रहा है, it will lead to one element inside। और इसमें जो है ये similar to option C है, ये फोर्थ वाला ये भी गलत है, which is incorrect form for output as 1, output as 1 ये गलत है, it will not result in value 1। तो इसीलिए आपका जो है A and B ही सही होगा, A and B। ठीक है, ये एरे आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सीरीज इन्वर्टर with series load delivers a load power of 1 kilowatt at resonance, the value of load resistance and the resonant frequency, और load resistance and the resonant frequency and Q factor दिया है। देखिए इसमें क्या निकालना है, देखिए रेजोनेंट इन्वर्टर जो होता है, इट इज एन इलेक्ट्रिकल इन्वर्टर whose operation is based on the oscillation of resonant current। स्विचिंग डिवाइस एंड द रेजोनेंट कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ईच अदर। जैसे मान लीजिए ये C है, ये L है, ये प्लस माइनस VS है, ये सीरीज लोडेड सर्किट है, तो ये प्लस माइनस V0 है, ये C है, ये प्लस माइनस V0 है, ये V0 है, ये C है, ये प्लस माइनस V0 है, ये V0 है, ये C है, ये प्लस माइनस V0 है, ये V0 है, ये C है, ये प्लस माइनस V0 है, ये V0 है, ये C है, ये प्लस माइनस V0 है, ये V0 है, ये C है, ये प्लस माइनस V0 है, ये V0 है, ये C है, ये प्लस माइनस V0 है, ये V0 है, ये C है, ये प्लस माइनस V0 है, ये V0 है, ये C है, ये प्लस माइनस V0 है, ये V0 है, ये C है, ये प्लस माइनस V0 है, ये V0 है, ये C है, ये प्लस माइनस V0 है, ये V0 है, ये C है, ये प्लस माइनस V0 है, ये V0 है, ये C है, ये प्लस माइनस V0 है, ये V0 है, ये C है, ये प्लस माइनस V0 है, ये V0 है, ये C है, ये प्लस माइनस V0 है, ये V0 है, ये C है, ये प्लस माइनस V0 है, ये V0 है, ये C है, ये प्लस माइन
देखिए इसमें एक लोड रेजिस्टेंस R है इन सीरीज विद द रेजोनेटिंग कंपोनेंट्स L एंड C, हेंस द नेम सीरीज इन्वर्टर विद अ सीरीज लोड। रेजोनेंस में क्या होता है, Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट L बाई आर, ओमेगा नॉट 1 बाय अंडर रूट LC। जब आप ये वैल्यू रखोगे तो इसमें आप देखो F नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। आप इसकी वैल्यू रखिए, आपको क्या निकालना है, L और C की वैल्यू निकालनी है ना, ये तो आप निकाल सकते हो। Q की वैल्यू दी है 3.85, तो यहाँ पे लिखो 3.8, फिर 2 पाई, यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको, कितनी दी है 20 किलोहर्ट्ज, 20 किलोहर्ट्ज इंटू L अपॉन R कितना दिया है 10, तो आपका निकल जाएगा ना L की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से 306.37 माइक्रो हेनरी, तो ये वाला ऑप्शन सही है। फिर C की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ इस फॉर्मूले से ये वाली, तो आपका जो है A एंड B ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये है, और बाकी इतना हो गया है, नेक्स्ट टाइम करेंगे। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी और आप लोग इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच।